हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.1। जो क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस बताएंगे। तो एक्सरसाइज 10.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट of 40 kilometer, that is 30 degree east of north. So this is the first question. So let's try to solve now. Solution. सबसे पहले ये जो डायरेक्शंस हैं हमारे पास वो इस टाइप से ली जाती हैं कि यहाँ पर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, these are the directions. Now graphically we have to represent, so we will draw two perpendicular lines. This is towards east, this is towards north, this is the origin from where the displacement is to be calculated. So there is a displacement of 40 kilometer 30 degree east of north. North से north जो है उससे 30 degree east की तरफ, मतलब यहाँ से भी आप टू ड्रॉ ए वेक्टर, ओके, एंड लेंथ शुड बी 40 किलोमीटर। जो लेंथ है वो 40 किलोमीटर शो होना चाहिए। तो हम यहाँ पर इक्वल गैप्स पे 1 यूनिट इक्वल टू 10 किलोमीटर लेकर इस टाइप से ये जो डिस्टेंस 1 2 3 4, ठीक है, तो इट विल शो 40 किलोमीटर एंड लेट दिस बी पॉइंट ए। Then OA vector will represent the displacement of 40 kilometer and 30 degree east of north. 30 degree east of north means this angle is 30 degree. Okay, I have explained it earlier that this angle will be 30 degree. 30 degree east of north. तो north से 30 degree bend किया हुआ, this will be the ray OA vector. That OA vector will represent the displacement of 40 kilometer, that is 30 degree east of north. तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 में और क्वेश्चन नंबर 3 में हमें केवल स्केलर्स और वेक्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है, सारे पार्ट्स लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वी हैव टू क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर्स एंड वेक्टर। तो क्वेश्चन नंबर 2, first is 10 kg, second is 2 meter northwest, third is 40 degree, fourth is 40 watt, fifth is 10 power minus 19 coulomb, and sixth is 20 meter per second squares. Here we have to see the units, and on the basis of the units we can decide कि किस टाइप की ये क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है। तो वो क्वांटिटी जो है वो वेक्टर है या स्केलर। जैसे 10 kg, जो kg है दैट इज द यूनिट ऑफ मास, एंड मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो इट इज एन स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। 2 meter नॉर्थ वेस्ट, इट इज द डिस्प्लेसमेंट that is towards the direction northwest. Okay, so it is a vector quantity. Now 40 degree, that is the angle. We have to find the value of this, it is vector or scalar. So 40 degree is the angle, so it is a scalar quantity. Now 40 watt, what is the unit of power? So it is again a scalar quantity. Coulomb, that is the unit of charge, and this is a scalar quantity. And 20 meter per second square shows the acceleration, because meter per second square is the unit of acceleration. Meter per second square is the unit of acceleration. So acceleration is a vector quantity. So this way we have identified कि which of the following measures are vector or scalar. Now come to the question number 3 now.
In the question number 3, first part. In the first part, it is given to be time period. So time period quantity किस टाइप से होगी ये देखेंगे. सेकंड पार्ट इज डिस्टेंस. थर्ड इज फोर्स. फोर्थ इज वेलोसिटी. and the fifth one is work done. So here some quantities are there and we have to find कि these quantities are vector और स्केलर. ये वेक्टर है या स्केलर हमें पता करना है. ठीक है, तो सबसे पहले टाइम पीरियड कैसी क्वांटिटी है? स्केलर. क्यों? क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता, टाइम का कोई डायरेक्शन नहीं है. डिस्टेंस इट इज़ अगेन स्केलर क्वांटिटी. ओके, एंड द फोर्स दैट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. इसमें फ़र्क पड़ता है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगाया गया है. तो इट हैज़ द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन. सो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. तो वी विल राइट हेयर इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. देन वेलोसिटी दैट इज अगेन ए वेक्टर क्वांटिटी एंड द वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हैव बीन completed and here you see that the question number 2 and 3 have been completed. That is on the base that the quantities are the vector or the scalar. वेक्टर क्वांटिटी वो हैं जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, और स्केलर क्वांटिटी वो है जिसमें मैग्नीट्यूड तो है बट डायरेक्शन नहीं है. इसको हम एक अगली वीडियो में तुम्हें समझाएंगे बहुत इंटरेस्टिंग वे में कि कैसे हम किसी फिज़िकल क्वांटिटी का पता करेंगे कि वो वेक्टर है या स्केलर. जैसे फॉर एग्जांपल डिस्टेंस है, दैट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. एंड स्पीड मिलती है हमें किससे? डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस इज स्केलर, टाइम इज स्केलर, सो स्पीड मस्ट बी स्केलर. ठीक है, जब हमें स्केलर और स्केलर से हमें क्वांटिटी मिलेगी स्केलर, और जब हमारे पास कोई क्वांटिटी है जो वेक्टर है और एक स्केलर है तो फिर वेक्टर मिलेगी. और अगर दो क्वांटिटी हमारे पास वेक्टर हैं, ठीक है, तब हमें जो क्वांटिटी मिलेगी वो स्केलर मिलेगी. तो उसको हम कुछ साइंस के कुछ फार्मूले लेके कुछ रिलेशंस लेके उसको हम समझाने की कोशिश करेंगे. तो उसको हम फिर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे. अभी एनी हाउ यू हैव सॉल्व दिस एक्सरसाइज 10. सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4 नाउ. Now we discuss question number 4 of exercise 10.1. Question number 4. In question number 4, a figure is given that is in a shape of a square. So it is a vector here. This vector is D vector. This vector is C vector. And this vector is B vector. C vector's direction is this. Okay, so now the first part, co-initial vector. So what are the co-initial vectors? The vectors are said to be co-initial if they begin from the same initial point. Means initial points are same. So identify what are the vectors that are having the same initial point here. So here we see A vector and D vector are co-initial vectors starting from this point. You see ये दिखाई दे रहा है, इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं दोनों वेक्टर, तो ये को-इनिशियल हो गए. सेकेंड पार्ट है इक्वल वेक्टर्स. इक्वल वेक्टर्स आर द वेक्टर्स विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड इन डायरेक्शन. यानी टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल if they are equal in magnitude as well as in direction. So here you see what are the vectors that are equal in direction. Vector D and vector B. These are the two vectors that are having the same direction and magnitude 2. Magnitude भी इनका same है. तो equal vectors में हमारे पास हो गए D vector and B vector. So these are the equal vectors you see. Okay. Now the third one is collinear but not equal. Collinear but not equal. Collinear vectors are the vectors that are parallel to the given line.
कोई भी लाइन के पैरेलल जो वेक्टर्स होते हैं वो कॉलिनियर कहलाते हैं, एंड व्हाट एवर बी देयर डायरेक्शन डजंट मैटर। सो हियर यू सी कि कॉलिनियर होना चाहिए बट नॉट इक्वल। सो वेक्टर ए एंड सी आर हैविंग द अपोजिट डायरेक्शन बट दे आर कॉलिनियर, एंड डी एंड बी आर कॉलिनियर but these are equal also, but we have to identify the vector that are collinear but not equal। collinear हो लेकिन बराबर नहीं हो, तो यहाँ पर आंसर होगा A and C vector। clear? A vector and C vector are collinear but not equal। now question number 5, we have to identify whether the statement is true or false। true false, true or false। come to the first point, a vector and minus a vector are collinear। सोचो इस पे, a vector and minus a vector are collinear। तो a vector है और minus a vector में क्या डिफरेंस हुआ कि a minus a vector है दैट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, तो कॉलिनियर तो हो गई, केवल इनका डायरेक्शन ही तो चेंज है। ए वेक्टर हमारे पास ये है और माइनस ए वेक्टर जो है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, तो ये कॉलिनियर हो गए। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, नाउ द सेकंड केस, सेकंड पार्ट, टू कॉलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। टू कॉलिनियर वेक्टर्स, two collinear vectors are always equal in magnitude। अब कोई दो कॉलिनियर वेक्टर हैं, क्या उनका मैग्नीट्यूड हमेशा ही सेम होगा? दिस इज द गिवन लाइन और इसके पैरेलल ये दो वेक्टर हैं, तो ये ए वेक्टर और बी वेक्टर आर कॉलिनियर because these are parallel to the same line L suppose। तो टू कॉलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर ये हमारा जो बी वेक्टर है वो और भी बड़ा हो सकता है, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नाउ थर्ड पॉइंट, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द थर्ड पॉइंट। टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कॉलिनियर। टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, सोचो इस पे, टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कॉलिनियर। ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, दो वेक्टर हैं जिनके मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग हो सकते हैं ना, मैग्नीट्यूड तो सेम हो सकते हैं। एक वेक्टर हमारा ये है ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर जो बी वेक्टर है वो ये है, बट दोनों के मैग्नीट्यूड सेम हो सकते हैं, इनकी ये लेंथ और ये लेंथ दैट मे बी सेम। सो टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कॉलिनियर, दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। सो इट इज फॉल्स। नाउ द नेक्स्ट fourth part, that is the last part here, and fourth part is two collinear vectors having the same magnitude are equal। सोचो, two collinear vectors having the same magnitude are इक्वल। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? ट्रू लग रहा है बट ट्रू नहीं है। दो कोलिनियर वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो मीन्स एक वेक्टर मान लो ये है ए, ये एक गिवन लाइन के पैरेलल दूसरा एक वेक्टर मान लेते हैं बी, मैग्नीट्यूड आर सेम। तो मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है बट उनके डायरेक्शन तो अपोजिट हो सकते हैं ना। मैग्नीट्यूड सेम, मान लो ये बी वेक्टर है, सो दिस ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है दैट मे बी इक्वल टू बी वेक्टर्स मैग्नीट्यूड, बट दे हैव अपोजिट डायरेक्शंस, एंड इफ दे आर हैविंग द अपोजिट डायरेक्शन देन वो इक्वल नहीं कहलाएंगे। तो यहाँ पर टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट।
Okay, so this was your exercise 10.1 that I have solved, and I think that you all have understood this. And now we will discuss the next exercise, that is the 10.2. Okay, see you.